Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We are going to continue with chapter number 17 of our spectrum, that is Emergence of Swarajists, Socialist Ideas, Revolutionary Activities and Other New Forces. When we talk about revolutionary activities after NCM, that is right now in this period, we will talk about revolutionary activities with a turn towards socialism, and we will see two strands of it. First, of HRA, which is Hindustan Republican Association, which later became HSRA. We'll be studying about it, which was spread over Punjab, UP, and Bihar. And then we'll talk about Bengal, which is the second strand. Yugantar, Anushilan Group, Chittagong Revolt by Surya Sen. So, two strands. The first one being HRA in Punjab, UP, Bihar. Second one being in Bengal, which is Yugantar, Anushilan Group, Chittagong Revolt by Surya Sen. So, why revolutionary activities? We'll try and understand why there was attraction towards revolutionary activities after NCM. Try and understand that there was severe repression after the World War One, right? And after that, Montfort reforms proved to be non-satisfactory, right? Also, when you see that Gandhi ji, initially first he launched the NCM, but due to violence he had to withdraw NCM. We have studied about this in the previous lecture. So, what happens when you withdraw a movement? Try and understand कि आप कोई movement में हैं in an active phase, okay? तो क्या होगा? For suppose someone withdraws the movement. Let's take NCM's example. People were boycotting schools, councils, people were boycotting British goods, picketing shops, right? अचानक से आप मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हो तो ये जो एनर्जी है ऑफ पीपल, इसको कौन डायरेक्शन देने वाला है? ये लूज हो चुकी है. नाउ इट्स लाइक पीपल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड दे हैव no as such organized work to do. So, how do they channelize this energy? How do they understand what to do? Right? So, when the movement was withdrawn, people were disillusioned by this. They did not understand what was happening. They actually lost hope in the basic non-violent strategy. They began questioning the strategy of nationalist leadership, and they started looking for alternatives apart from non-violence. So then came revolutionary activity, right? Um, all the participants that you see are youngsters, mainly they are youngsters, and they as I told you earlier also, that they were not satisfied with Swarajists, nor they were satisfied with no changers, their constructive work, and they were drawn towards the idea of violent methods, right? And they thought that only violent methods could lead to India's independence, right? Thus, revolutionary activities from now on were revived. Okay. Major influences इस वक्त क्या थे? I'll switch to Hindi. वर्किंग क्लास और ट्रेड यूनियनिज्म आप अब देखने वाले हैं. रशियन रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस था 1917 के दौरान. वर्किंग क्लास और ट्रेड यूनियन जब ऊपर आते हैं, उससे क्या इन्फ्लुएंस होता है? मास स्ट्रगल जब बनने लगती है, क्लास स्ट्रगल जब बनने लगती है, तो उसका क्या इन्फ्लुएंस होता है कोई भी मूवमेंट में? मैं प्रीवियस लेक्चर्स में इसको एड्रेस कर चुकी हूँ. Not as a topic but like as an ideology, right? रशियन रेवोल्यूशन 1917 में जो हुआ, उसके अलावा यू सी दैट सोशलिस्ट टर्न, यहाँ पे कम्युनिस्ट टर्न, एम्फोसिस ऑन मार्क्सिज्म, ये सब भी आपको देखने को मिलने वाला है अब. ऑल्सो मेमोयर्स ऑफ जो यू नो journals publishing memoirs of different people जो सेल्फ सैक्रिफाइस एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ की बात कर रहे हैं. सम ऑफ दीज बीइंग आत्मशक्ति, सारथी, बिजोली, दीज आर सम ऑफ द
journals, right, which talked about self-sacrifice, which talked about you know uh, how a revolutionary could bring in some kind of change, right? So all this attracted people towards revolutionary activities, right? Like novels like Bandi Jawan. You have to remember this because it was written by Sachin Sanyal, very important personality, right? I've told you about this. Bandi Jawan. Then you have Pathar Dabi by Sharat Chandra Chatterjee. Important to remember. Pathar Dabi by Sharat Chandra Chatterjee and Bandi Jawan by Sachin Sanyal. So these were some of the influences why people were moving towards revolutionary activities, right? Now we'll talk about Punjab, United Provinces, and Bihar. As I told you earlier, one strand of it was emerging here, one of the strands of revolutionary activities, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की हम यहाँ पर बात करेंगे, जो लेटर HSRA बन गया. दैट वाज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन. ठीक है, ये एक्चुअली फाउंड हुआ था 1924 में इन कानपुर, राइट? और जो लोग थे जिनकी वजह से ये आया था इन 1924 कानपुर वर सचिंद्र नाथ सान्याल, विच इज सचिन सान्याल, जोगेश चैटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राइट? सचिन सान्याल जी, जोगेश चैटर्जी जी, and Ram Prasad Bismil. These were the people who were responsible for HRA to come up, right? Where did it come up? Kanpur. Easy to remember. Punjab, UP and Bihar से आप उसको remember कर सकते हैं. And in 1924 October, right? What was the aim? Aim काफ़ी यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि आर्म्ड रेवोल्यूशन करना है, क्योंकि ये स्टेट तो हो गया है कि ओनली अ वायलेंट रेवोल्यूशन कैन लीड इंडिया टू द पाथ ऑफ इंडिपेंडेंस. ये रेवोल्यूशनरीज का एक आइडियोलॉजी फॉर्म हो चुका है, ठीक है, टू ओवरथ्रो कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिश इन इट्स प्लेस फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया. क्या एम है? क्लियर एम है. आपके पास रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का, इस वक्त की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी या HSRA या फिर भगत सिंह के बारे में या फिर कोई भी ऐसी पर्सनालिटी के बारे में सवाल आएगा तो इनिशियली व्हेन यू टॉक अबाउट भगत सिंह, द इनिशियल एम वाज टू ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रेवोल्यूशन to overthrow colonial government and establish in its place Federal Republic of United States of India. People involved for the HRA to come up were Sachin Sanyal, Jogesh Chatterjee, and Ram Prasad Bismil. Right now, we'll move to also प्रिंसिपल वुड बी ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज. जो ये आपका फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ये बनाने वाले हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये रखने वाले थे अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट? अडल्ट फ्रेंचाइज अगर आपको नहीं पता है, प्लीज सर्च. वेरी वेरी बेसिक. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल ऑफ इट, राइट? ककोरी रॉबरी HRA से एसोसिएटेड है, आपको पता होना चाहिए. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट HRA, यू राइटिंग एन आंसर अबाउट HRA, और अगर प्रीलिम्स में वर्ड एसोसिएशन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो ककोरी रॉबरी है वो HRA से एसोसिएटेड है. 1925 में होती है. एक्चुअली जो 8 डाउन ट्रेन थी एट ककोरी, उसको लखनऊ के पास लूट किया. जो उसका ऑफिशियल रेलवे कैश था उसको लूट किया. इसको ककोरी रॉबरी कहते हैं. और ये किसने कंडक्ट कराया था? HRA के मेंबर्स ने, जिसमें से 17 जो मेंबर्स हैं उनको दे वर जेल्ड एंड 4 वर ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ. जो 4 दैट वर ट्रांसपोर्टेड टू लाइफ वर बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लहरी, राइट? 4 important names to remember. How to remember? कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है या फिर इंसिडेंट का नाम आता है ककोरी, तो यू हैव टू रिमेंबर मैच द फॉलोइंग में इनमें से एक इंसान का नाम दिया जा सकता है, सो दैट यू आर एबल टू you will get confused over there. So remember Bismil, Ashfaqullah, Roshan Singh, Rajendra Lahiri. Bismil, Ashfaqullah, Roshan Singh and Rajendra Lahiri. अब क्या होता है कि ककोरी सेटबैक को ओवरकम करने के लिए जो यंगर रेवोल्यूशनरीज हैं, जो सोशलिस्ट आइडियाज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, वो रीऑर्गेनाइज करना चाहते हैं HRA को, और उसको वो
HSRA में कन्वर्ट कर देते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। ये कहाँ पे होता है? फिरोज कोटला में होता है। वेयर? इन दिल्ली। फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। ओके। सितंबर 1928 को, अक्टूबर 1924 को ये बना था, सितंबर 1928 को इट कन्वर्ट्स इनटू HSRA अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद, राइट। इसको रीऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं यंगर नेशनलिस्ट, यंगर रेवोल्यूशनरीज जो कि सोशलिस्ट आइडियाज से इंस्पायर्ड है, राइट। पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कौन कौन है? अगर यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स HSRA का आप देखें तो भगत सिंह है, सुखदेव है, भगवती चरण वोरा है, बिजोय कुमार सिन्हा है, शिव वर्मा है, जयदेव कपूर है। भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोरा, बिजोय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो नाम आप भूल सकते हैं बट रिमेंबर। भगत सिंह के HSRA पार्टिसिपेंट होने से आपको एक और चीज पता चलती है कि सोशलिस्ट आइडियाज से इंस्पायर्ड थे भगत सिंह, राइट राइट। सो अगर भगत सिंह पे आप पे आंसर आता है या फिर सुखदेव पे आता है, भगवती चरण वोहरा पे आता है, वैसे अगर आएगा तो भगत सिंह पे आएगा, तो यू हैव टू रिमेंबर सोशलिस्ट आइडियाज भी आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ओके गोल क्या है? क्लियर गोल है, सोशलिज्म ही गोल है। ओके कलेक्टिव लीडरशिप के अंदर काम करना है और अडॉप्ट करना है सोशलिज्म एज एन ऑफिशियल गोल, यही गोल है, ठीक है। एक और इवेंट की बात करते हैं, सॉन्डर्स मर्डर, लाहौर 1928, या फिर इसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी आप बोल सकते हैं। इस वक्त तक क्या हो रहा था कि रेवोल्यूशनरीज जो है इंडिविजुअल जो हीरोइक एक्शन है उससे मूव कर रहे थे टुवर्ड्स कलेक्टिव हीरोइक एक्शन, राइट। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन क्या है कि एक अकेला इंसान जाकर किसी को असैसिनेट करने की कोशिश कर रहा है, या किसी की ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर यू नो दोज काइंड ऑफ हीरोइक एक्शंस, या फिर रॉबरी, राइट। इससे मूव करके एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रेवोल्यूशन लाने की कोशिश में लग रहे थे। लेकिन तभी लाला लाजपत राय जी की डेथ होती है। लाला लाजपत राय जी की डेथ क्यों होती है? उन लाठी चार्ज से होती है ड्यूरिंग एंटी साइमन प्रोटेस्ट, ठीक है। ये जो इंसिडेंट है, ये ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, और जो रेवोल्यूशनरीज हैं उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी वाज लाला लाजपत राय, कि उन्हें शेर ए पंजाब का टाइटल मिला हुआ है। तो जब लाला लाजपत राय जी को की डेथ होती है ड्यू टू लाठी चार्ज, ठीक है, एंटी साइमन प्रोसेशन के दौरान, जो कि एक्चुअली अक्टूबर 1928 में हुई थी, तो रेवोल्यूशनरीज दोबारा इंडिविजुअल असैसिनेशन की तरफ आ जाते हैं। और इस बार वो क्या करते हैं? सॉन्डर्स जो है, the policeman at the police officer that was actually responsible for this लाठी चार्ज, उसको शूट कर देते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु एंड भगत सिंह। ये आपने बहुत बार इनके बारे में पढ़ा होगा, ये इंसिडेंट के बारे में भी पढ़ा होगा। सॉन्डर्स को सॉन्डर्स वाज एक्चुअली शॉट बाय चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु एंड भगत सिंह, ठीक है। किस वजह से हुआ था? लाला लाजपत राय जी की डेथ की वजह से, जिस उन पे लाठी चार्ज हुआ था। लाठी चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर थे वो सॉन्डर्स थे। वो किस लिए प्रोटेस्ट करने आए थे लाला लाजपत राय जी? एंटी साइमन जो प्रोटेस्ट था उसमें आए हुए थे, ठीक है। उस वक्त उन पर ये लाठी चार्ज हुआ था। शेर ए पंजाब आप किसको बोल रहे हैं? आप वो लाला लाजपत राय जी को बोल रहे हैं। सेकेंड इंसिडेंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है बॉम्ब एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1929। भगत सिंह और भटुकेश्वर दत्त जो हैं उनको बोला गया था कि आपको एक बॉम्ब थ्रो करना है ऑन अप्रैल 1920। आई थिंक इट वाज, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट, बट आई थिंक इट वाज 8 ऑफ अप्रैल 1929 को आपको बॉम्ब थ्रो करना है एट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बे, राइट। आई थिंक इट वाज इन बॉम्बे ओनली, या। सो ये बॉम्ब क्यों थ्रो करना था? अगेंस्ट द पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब थ्रो करने के पीछे का कारण क्या था?
Bhatukeshwar Dutt and Bhagat Singh were asked to do so. April 1929, why so? Public Safety Bill के passage के against and Trade Dispute Bill के passage के against. ये दोनों जो bills हैं ये they were severely curtailing civil liberties of citizens as well as workers in particular, right? तो deliberately आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो बॉम्ब है वो deliberately it was made harmless, ताकि इससे कोई नुकसान ना हो, ठीक है. It was made harmless and was aimed at making an object. The objective was to get arrested for it, to use trial court as a forum for propaganda so that people would become familiar with the movement and ideology. तो आइडिया क्या था कि हम बॉम्ब फेंकेंगे तो हमें अरेस्ट किया जाएगा एंड देन वी वुड यूज ट्रायल कोर्ट as a forum for propaganda so that people could understand the idea behind this revolution. ठीक है. ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि ब्रिटिशर्स ये सब तो दे विल नॉट टेक इट लाइटली एंड दे डिड नॉट. ऑब्वियसली action was taken against revolutionaries. What were the actions? Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru were tried in Lahore conspiracy case. Many other revolutionaries were tried in other cases. Many were jailed. Horrible condition में रह रहे थे. They were fasting. They were demanding. Jatin Das became the first martyr. Okay, so Jatin Das was the first one who actually died. Okay. Why? On his 64th day of fast. Okay. And Bhagat Singh actually became a household name. Very evident, we know it. Okay. Azad, Chandrasekhar Azad was involved in a bid to blow up Viceroy Irwin's train. तो उनका पुलिस एनकाउंटर होता है Allahabad 1931 में. Very sadly, this happened. And Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru were hanged on March 23rd, 1931. We are going to do Bhagat Singh's ideology and his thought process in detail because he is a very important personality. Also remember, Viceroy Irwin की ट्रेन को blow up करने के bid में जिनका encounter हुआ था वो आज़ाद थे. ठीक है. So this is about UP, Bihar and Punjab. We are going to do Bengal tomorrow. Till then, all the best. Study well. Bye.